ہاں عادل بھائی، یہ ہوں دیوبندیوں کا جو گرو گھنٹال ہے، جس کو مجدد کہتے ہیں یہ لوگ، ہوں اشرف علی تھانوی، یہ تو ہوں اپنی جہالت میں مشہور ہے نا۔ ان کی کتابوں سے ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جاہل تھا، جس کو یہ لوگ مجدد مانا ہے، اور اپنے ہوں دھرم اور ایمان کا سودا کر بیٹھا ہے یہ لوگ۔ مثلا جسے حضور اقدس شہنشاہ کونین سرور عالم سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات اتنے کثیر فضائل و کمالات اور خصائص کے حامل ہیں کہ اگر کسی مکتب کے طالب علم بلکہ مزدور قسم کے کسی عام مسلمان کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو وہ بھی کافی دیر تک بڑی آسانی کے ساتھ والہانہ انداز اور محبت بھرے لب و لہجہ میں فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتا ہے اور داد و تحسین حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن وہابی دیوبندی اور تبلیغی جماعت کے جاہل مجدد اور گستاخ بارگاہ رسالت مولوی اشرف علی تھانوی اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یاد نہ تھے، بلکہ حوالہ پیش خدمت ہے، سنیے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند، ان کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے بڑے جلسہ دستار بندی میں بعض حضرات اکابر نے ارشاد فرمایا، اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں۔ حضرت والا نے یہ باادب عرض کیا کہ اس کے لیے روایات کی ضرورت ہے اور وہ روایات مجھ کو مستحضر نہیں۔ اس پر حضرت والا سے فرمائش ہوئی کہ اگر وقت پر کچھ روایات یاد آ جائیں تو ان کے متعلق کچھ بیان کر دیا جائے، ورنہ خیر۔ یعنی اس کو کچھ روایات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یاد نہیں تھا، ہے نا۔ چونکہ اکابر کی طرف سے اختیار مل گیا، اس لیے حضرت والا نے حب دنیا کے متعلق واضح بیان فرمایا، جس کی بوجہ ابتلاء عام سخت ضرورت تھی۔ یہ کتاب دو کتاب میں موجود ہے، جیسے اشرف الصوانح ایک کتاب ہے، جلد نمبر اول باب دہوم میں صفحہ نمبر 124 میں لکھی ہوئی ہے، اور الافادات الیومیہ جو مشہور ہے ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 61 ملفوظ نمبر 68 میں یہ لکھے ہوئے ہیں۔ بس کتاب کی یہ عبارت کئی حیرت انگیز انکشافات سامنے لاتے ہیں۔ سنیے کیا کیا اس میں یہ عبارت میں ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نمبر 1، دارالعلوم دیوبند کے بڑے جلسہ دستار بندی کے موقع پر دیوبندی نزدی مکتب فکر کے بعض اکابر نے تھانوی سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنے کی درخواست کی، یعنی ان کے بعض اکابر نے، ہے نا، ان سے بیان کیا، درخواست کیا۔ تھانوی صاحب سے فرمائش اپنے مفاد اور فوائد کے لیے کی گئی تھی، یعنی دیوبندی وہابی جماعت کے تعلق سے عوام الناس کی یہ رائے ہے کہ یہ جماعت گستاخ رسول ہے، اور اس جماعت کے علماء فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کرتے، لہذا دارالعلوم کے دستار بندی کے موقع پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر دیے جائیں تو ہم کو بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم پر وہابیت کا جو لیبل لگا ہوا ہے، شبہ ہے، وہ دور ہو جائے لوگوں سے، تاکہ چندہ پانی ملتا رہے۔ نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل محبت رسول، تعظیم رسول، عظمت رسول کا اظہار
और तौकीर व उल्फत यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बिना पर नहीं बयान किए जाते, बल्कि एक साजिश बल्कि तकियाबाजी के तहत बयान किए जा रहे हैं। हालांकि एक मोमिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रसूल के जज्बा में सच्चे दिल से बयान करता है, लेकिन मुनाफिकों की जमात यानी वहाबी देवबंदी की जमात फजाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने फायदे और नफा के लिए बयान कर रहे हैं, यानी करता है ये लोग। और अशरफुस सवानी की ये इबारत मज़कूरा इबारत जो अल्फाज इन अल्फाज की तरफ खास तवज्जो दें, लिखा है ये मौका भी अच्छा है क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ तबकात के लोग मौजूद हैं, ये लिखी हुई है। यानी इस वक्त हमारी वहाबी जमात के लोग के अलावा अहले सुन्नत व जमात के सहीउल अकीदा लोग भी काफी तादाद में हैं, और ये सुन्नी हजरात हमें वहाबी गुमान करते हैं और वहाबी गुस्ताखे रसूल होता है। वहाबी कभी भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल बयान नहीं करते, लिहाजा ये मौका गनीमत है देवबंदी मकतब फिक्र के लोगों पर भी ईमान वाले लोग वहाबी होने का शुबहा जो शक व शुबहा करते हैं, हम अपने सर से वहाबियत यानी देवबंदियत वहाबियत के शुबहा को जो बोझ है हल्का कर डालें। इस वक्त जलसा दस्तारबंदी में काफी तादाद में सुन्नी जमात के सुन्नी ख्याल के लोग मौजूद हैं। हालांकि हम भी पक्के वहाबी ही हैं, लेकिन अपने वहाबियत पर पर्दा डालने के लिए मौजूद जो लोग थे, हालांकि हम उन लोग तो पक्के वहाबी हैं, है ना, वो पर्दा डालने के लिए हम इस वक्त तकियाबाजी अख्तियार करके फजाइल रसूल बयान करके लोगों को धोखा और फरेब देकर अपनी पोजीशन साफ कर लें, अपने मैदान साफ कर लें, और हम वहाबी नहीं हैं का इकरार इन लोग कर लेगा ताकि हमारा मैदान साफ हो जाएगा। नंबर 5 जी, नबी को हम मानते हैं, पता है ना कौन जबान से कहते हैं कि मानते हैं। मानता है, कैसे मानता है तो अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में लिख छोड़ा है किस तरह से मानता है उसको, माज़अल्लाह वो बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, लोगों को अच्छी तरह से मालूम है ये देवबंदी कैसे मानते हैं। बहरहाल मैं ये इबारत में अशरफुस सवाने और उनके मलफूजात का जिक्र जब आ गया है तो मैं आपको इसमें जो शक व शुबहात हैं, जो बातें वाज़े हो रही हैं, उसको बयान कर दे रहा हूँ। वहाबी देवबंदी और तबलीगी जमात के अकाबिर उलमा ने बंद लफ्जों में इस हकीकत का एतराफ कर लिया है कि वहाबी गुस्ताखे रसूल होता है और वहाबी कभी भी फजाइल रसूल के उन्वान पर तकरीर और बयान नहीं करते। नंबर 6, इबारत के अल्फाज ये मौका अच्छा है, लिखे ये मौका अच्छा है, ये भी गौर तलब है कि ये मौका नहीं बल्कि ये मौका भी के अल्फाज हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि लोगों को धोखा देने के लिए फजाइल रसूल बयान करने का सिर्फ यही मौका नहीं बल्कि ये मौका भी है। यानी वहाबी देवबंदी और तबलीगी जमात के मुतबईन जो इनकी तबाह करते हैं, ऐसे कई मौके पर लोगों को धोखा देते हैं कि हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल मोहब्बत रसूल का जज्बा सादिक के तहत नहीं, यानी सच्चे दिल से नहीं होता, बल्कि लोगों को धोखा और फरेब देने के लिए बयान करते हैं, बल्कि हमेशा ऐसे मौके की तलाश और जुस्तजू में रहते हैं कि फजाइल रसूल बयान करके अवाम नास के साथ धोखाधड़ी यानी धोखाबाजी और फरेबकारी करें, इन लोगों को धोखा देकर अपने वहाबियत में जमात में शामिल कर लें, यही ताक झाक में रहता है इनके मौलवियों। नंबर 7, दारुल देवबंद के बड़े जलसे दस्तारबंदी में भी धोखेबाजी की पॉलिसी अपनाई गई और अवामुन नास को धोखा देने के लिए फजाइल रसूल बयान करने का ये तरीका तय किया, लेकिन बयान कौन करेगा? इन दिनों में वहाबी जमात के मौलवी अशरफ अली थानवी जो तकरीर में मशहूर था उस वक्त में, ये बड़ा प्रोग्राम वगैरह करता था ना, देवबंदी मकतब फिक्र के अकाबिर उलमा ने उस वक्त जो अकाबिर थे इस फरेबी काम को अंजाम देने के लिए थानवी का इंतखाब किया। यानी वो लोग जान रहा था कि धोखा जो देता है ये अशरफ अली थानवी जैसा माहिर कोई धोखा देने वाला अभी नहीं है, इसलिए उसके अकाबिर ने कहा कि फजाइल रसूल बयान कर दो।
और थानवी को इस मैदान में उतारना चाहा, लेकिन वहाबियों का रईस और गुरु घंटाल मौलवी घोड़ दौड़ के मैदान में चराग पा होने के बजाय उड़ गया और यही कह दिया कि इसके लिए रवायत की जरूरत है, और वो रवायत मुझको मुस्तहजर नहीं, यानी कुछ याद वूद नहीं है फजाइल रसूल में मुझे कोई तकरीर वगैरह। यानी थानवी साहब ने खुल्लम खुल्ला इकरार कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल बयान करने के लिए रवायत बयान करने की जरूरत पड़ती है, और ऐसे वाकयात जिन वाकयात के बयान करने से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत व अज़मत का इजहार हो, ऐसे वाकयात मुझको मुस्तहज़र नहीं, यानी या कुछ भी याद नहीं। वाह थानवी साहब, दाद देनी चाहिए थानवी को कि मलफूजात पर मुश्तमिल कसीर तादाद मतबूआत का मुताला करने से मालूम होगा कि दुनिया भर के खुराफात और लग़वियात फहश पर मुश्तमिल हजारों बल्कि लाखों बेहुदा मुहम्मल बेमाना वाहियात फजूल बेअसल और वाशी रिवायात थानवी साहब को अच्छी तरह से याद थी। समझे? जिस तरह कोई लोफर अपने चेले चपाटे के सामने ऐसी रिवायात फखरिया तौर पर बयान करता है, इस तरह थानवी ने भी अपनी रोजमर्रा के मजलिसों और महफिलों में बयान करते थे, जिनको थानवी साहब के मुरीदों ने मुअतक़ीदीन ने कलम बंद करते थे, और वो रिवायात आजकल इस्लामी लिटरेचर की हैसियत से शाये की जा रही हैं, आज भी वो छप रही हैं, जिसमें ऐसे खुराफात लिखी हुई हैं, मजमुआ उनके मलफूजात के मजमुआ जिसको छाप रहे हैं लोग फखरिया तौर पर, उसको पढ़ने के बाद एक गुंडे मवाली की बात मालूम होते हैं। मिसाल के तौर पर जिसे बहुत माँ के साथ अकल के फतवे से जना करना, घूम खाना वगैरह अकल के फतवे से जायज लिखा है, इकरार भी किया है, आज भी छप रहा है ये। और जिसे जी जो आप बता रहे थे उस दिन जो कि अशरफ अली थानवी ने लिखा है गू खाना जायज है और माँ के साथ जिना करना ये भी जायज अकल के फतवे से जायज है। हाँ, अकल के फतवे इन लोग चलते, शरीयत के फतवे इन लोगों को आती जाती नहीं है। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा थानवी जी शरीयत के कितने पाबंद थे। अभी तो मैं इस इबारत पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अच्छा, वो लिखा है नहीं जो? हाँ, वो बयान किया है जिसको मलफूजात में दर्ज किया है। उनके मुअतक़ीदीन और अकाबिर देवबंद जो उसके अकाबिर खुलफा थे वो लोग तहरीर करके दे दिया, छाप करके। अभी भी इन लोगों का अक्ल गधे के उज़्वे मखसूस की जीता है, छाप रहा है, दुनिया वाले को बता रहा है। बहरहाल थानवी को कीमती वक्त जाय करने वाली लग़वियात पर मुश्तमिल रिवायत कसरत से याद थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजाइल की एक भी रिवायत याद नहीं थी, इतने जाहिल था। थानवी ने फजाइल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर बयान करने से इनकार कर दिया, और इनकार की वजह ये बताई कि रवायात याद नहीं। थानवी साहब के इनकार करने पर फरमाइश करने वाले वहाबी देवबंदी जमात के अकाबिर उलमा ने थानवी से फरमाया, अगर वक्त पर कुछ रवायात याद आ जाएं तो उनके मुतालिक कुछ बयान कर दिया जाए, वरना खैर। यानी थानवी से अव्वलन फजाइल रसूल बयान करने की जो फरमाइश की गई है वो आइन तकरीर के वक्त नहीं की गई थी, बल्कि थानवी के नाम का नाजिम जलसा, जो प्रोग्राम जलसा का नाजिम था, हेड था, उन्होंने ऐलान किया हो, ऐसी बात नहीं थी। बल्कि अब थानवी तकरीर फरमाएंगे, थानवी साहब खड़े होकर माइक संभालने जा रहे हैं, और उस वक्त उनसे फरमाइश की गई हो नहीं, बल्कि बहुत पहले जब दीगर मुकर्रिरीन हज़रात तकरीर कर रहे थे और थानवी अपने नंबर लगने की इंतजार में थे, तब फरमाइश की गई थी, मगर थानवी साहब ने इनकार कर दिया। तो उन्हें मजीद गुजारिश करते हुए कहा गया, इस वक्त तो आपको तकरीर नहीं करनी है, इस वक्त दीगर मुकर्रिरीन बयान कर रहे हैं, आपकी तकरीर का वक्त बाद में है, लिहाजा जब आपकी तकरीर का वक्त आएगा तब तक
में भी अगर आपको फजाइल रसूल की रवायत याद आ जाए तो बयान कर दीजिएगा, मगर हाय अफसोस इसके दिल में गुस्ताखे रसूल खर दिमाग को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल के ताल्लुक से कुछ भी याद नहीं था। तो कैसे याद आता? हालांकि ये तजर्बा से साबित शुदा हकीकत है कि किसी मुकर्रिर को उसकी तकरीर का वक्त आने से पहले कोई मुश्किल उन्वान दे दिया जाए। जब उन्वान दिया जाता है उस वक्त उसको दिए गए उन्वान के ताल्लुक से मज़ामीन मुस्तहज़र नहीं होते, लेकिन वो स्टेज पर बैठे बैठे अपने तकरीर का वक्त आने तक क्या वक्फा में उन उन्वानात के ताल्लुक से अपने जहन में मज़ामीन तरतीब दे देता है मुकर्रिर लोग, और अपनी तकरीर में हत्तल मकदूर उस उन्वान के ताल्लुक से तफसील गुफ्तगू कर लेता है। लेकिन वहाबी देवबंदी जमात के कोरे बातिन और कोरे मग्ज जाहिल नाम निहाद मुजद्दिद गुजरा कराने वाले फजाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते आसान उन्वान के ताल्लुक से अपनी तकरीर का वक्त आने तक के वक्फा के दौरान भी कोई मामूली से मामूली कोई रिवायत अपने जहन में तरतीब न दे सका, और थानवी साहब के लिए ये मुमकिन भी नहीं था, क्योंकि गुस्ताख रसूल के जहन में फजाइल रसूल बसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अशरफ सवाने के मज़कूरा इबारत जिस जुमले के तहत हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इस जुमला को आखिर में वरना खैर के अल्फाज है, वरना खैर, यानी वहाबी देवबंदी जमात के अकाबिर उलमा थानवी साहब से इल्तिजा और मन्नत समाजत करते हुए कहते हैं कि ये सुनहरी मौका है कि फजाइल रसूल बयान करके अवाम उन्नास को धोखा देने का। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। कोशिश कीजिएगा, दिमाग पर जोर दीजिएगा, अगर वक्त पर रिवायत कुछ याद आ जाए तो उनके ताल्लुक से कुछ बयान कर दीजिएगा। अगर ज्यादा रिवायत याद नहीं आए तो कुछ रिवायत यानी थोड़ी सी रिवायत याद आ जाए तो भी उसको रिवायत को ताल्लुक से थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिएगा। ये थोड़ा सा बयान भी हमारे लिए फायदा मंद होगा। जो प्लीज मेहरबानी करम कीजिए, यानी इल्तिजा कीजिए, इल्तिजा कर रहा था वो लोग, हमारी दरखास्त पर तवज्जो फरमाएंगे, थोड़ी जहमत गवारा फरमाकर याददाश्त पर जोर दें। लोगों को धोखा और फरेब देने के लिए फजाइल रसूल बयान करना अशद जरूरत है। हमारा कितना बड़ा फायदा है, हम पर वहाबियत होने का जो शक व शुबा किया जा रहा है वो दूर हो जाएगा। अगर आप फजाइल रसूल बयान कर दें तो अच्छा है, वरना खैर, यानी मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसे सुनहरी मौका को खैराबाद कहना पड़ेगा। वरना खैर अक्सर इस वक्त बोला जाता है जब किसी काम के पूरा होने की उम्मीद ना हो और गालिब गुमान नाउमीदी और मायूसी का हो, समझे। तो ये अशरफ अली थानवी बहानाबाजी करके आखिर तक फजाइल रसूल इसे जलसा में बयान नहीं कर सका। इतना जाहिल और धोखा देने वाला थानवी के जर्रा बराबर भी गैरत ईमान होती तो थानवी साहब अपनी जमात के आलिमों को साफ लफ्जों में फरमा देते कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल अपने देवबंदी जमात के मसलहत और फायदा के गर्ज से बयान करने का मशवरा देकर मुझे भी आप धोखाबाजी और फरेबकारी का मुर्तकब बनाना चाहते हो। मुझसे हरगिज ये काम नहीं हो सकेगा। मैं किसी को धोखा देने के लिए फजाइल रसूल बयान करके लोगों को धोखा देने का गुनाह मुझसे नहीं हो सकेगा। लिहाजा मुझसे ऐसे फरेबी काम लेने की कोशिश मत कीजिए, कह देता वो थानवी। बल्कि मैं आपसे भी मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि ऐसे जहनियत को तर्क फरमा दीजिए, खुलूस व इखलास से काम लीजिए। लेकिन नहीं, थानवी ने ऐसे दियानतदारी पर मुश्तमल कोई भी बात नहीं कही। वो भी अपने बड़ों की रविश पर ही चलते रहे, जैसे धोखाबाजी करना। वो भी लोगों को धोखा देने और लोगों को फंसाने में माहिर थे। बकौल थानवी के अकाबिर देवबंद के मदरसा दस्तारबंदी के मौके वाकई सुनहरी मौका था, मगर हाय अफसोस के मजबूरी वो थानवी साहब को फजाइल रसूल बयान करने के लिए रिवायत ही याद नहीं थे। इसलिए ही थानवी साहब ने माजरत की, रिवायत याद ना होने के सबब से बयान करने से इनकार फरमाया। अगर थानवी को फजाइल रसूल की कुछ रिवायत याद होती
तो थानवी अपने अकाबिर उलमा के हुक्म की तामील करते हुए फजाइल रसूल बयान करके धोखाबाजी करके एक मिसाल कायम करते, मगर घोड़ा ही लंगड़ा निकला, घोड़ दौड़ के मैदान में दौड़ने के काबिल ही नहीं था। ये समझे, इनको फजाइल वगैरह या कुछ भी याद नहीं सकता था, इसलिए माजरत तलब की और हुब्बे दुनिया के बयान किया। लेकिन उन्होंने फजाइल रसूल में कोई रिवायत नहीं, ऐसे मुजद्दिद को मानता है देवबंदी वहाबी। जब देवबंद में बड़ा जलसा हुआ था, उसमें मुझसे यानी हजरत देवबंदी हजरात ने फरमाया था कि इस जलसा में हुजूर के फजाइल बयान करना मुनासिब है। हजरत मौलाना का फरमाना इस ख्याल से था कि बड़ा मजमा है, हर किस्म के अकायद के लोग अतराफ से आए हुए हैं, जिनमें बाज़े वो भी हैं कि हम लोगों के मुतालिक ये ख्याल करते हैं कि इनके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत नहीं, नऊजुबिल्लाह। तो ऐसे लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजाइल सुनकर ये समझ जाएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इनके ये ख्यालात हैं। समझे, मैंने अर्ज किया कि ऐसे बयान में रिवायात के याद होने की जरूरत है, और रिवायत मुझको महफूज नहीं, मेरी रिवायत पर नजर बहुत कम है। जो मलफूजात में लिखे हुए हैं, मलफूज नंबर जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 51, मलफूज नंबर 68 में। तो बताइए, ऐसे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत फजाइल बयान करना, एक मामूली मुसलमान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी उलमा से सुन करके जानता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल बहुत कसरत से हैं, और उसको कोई मुजज़ा याद हो रहता है सुन करके भी। लेकिन कई सा जाहिल मुजद्दिद था, ये मुजद्दिद जिसको बनाया है ये देवबंदी हजरात, इतना जाहिल और कोर दिमाग और खर दिमाग था, जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल में एक भी रिवायत नहीं था। और ये इसको लिख करके अशरफुल सवाने में मलफूजात में शाये कर रहे हैं लोग, ये लोग। तो बताइए, ये शाये करना जिहालत, अशरफ अली थानवी की जिहालत को उजागर करना है या नहीं? तो ऐसे जाहिल मुजद्दिद जिसके पीछे जा करके और ऐसे जाहिल लोगों के थानवी जाहिल के बारे में उनके तालीमात को आम करने के लिए एक जदीद नई कौम पैदा कर दी गई। बताइए, ये नई कौम जो पैदा हुई है, जिसको बनाया, मैं नई कौम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इनके इलियास जो तबलीगी जमात के गुरु घंटाल जो ये तबलीगी जमात बनाया ना, इलियास कांधलवी, उन्होंने अपनी किताबों में लिख छोड़ा है कि जदीद कौम पैदा करनी है, तालीमात तो थानवी की हो और तरीक़े तबलीग मेरा हो। यानी इलियास कांधलवी के तरीका और अशरफ अली थानवी जो जाहिल था, मुजद्दिद जिसको मानते हैं, उसकी तालीम को आम करने के लिए एक नई कौम पैदा किया। और ये नई कौम लोगों मुसलमान को भटकाने के लिए अंग्रेज की साजिश थी, जिसके बिना पर ये लोग गुमराह और दायरे इस्लाम से खारिज और गुस्ताखे रसूल गुस्ताखे औलिया कर करके इनके दिल काले पड़ गए हैं और सोचते हैं कि हम ही अच्छा हैं, लेकिन ये गलतफहमी के शिकार हैं। समझे, अजमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका मुजद्दिद भी नहीं करता था, और आज ये देवबंदी भी नहीं करते हैं। फजाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे, अदब से बयान करेंगे, तो इन लोगों को बुखार यानी 75 डिग्री के बुखार लग जाता है। समझे, तो इन लोगों के जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब से खड़े होकर के सलाम पढ़ेंगे ना, तो इन लोग बिदअत शिर्क क्या फतवा जड़ना शुरू कर देगा। बहुत फतवा देते हैं सर, बहुत फतवा देता है ना। बताइए, एक मिसाल देता हूँ आपको मैं। अरब शरीफ अभी हाजी लोग हज करने गया है, वहां से आबे जमजम लाता है ना, आबे जमजम लाता है, तो वो जमजम का पानी जो है हम खड़े होकर के पीते हैं कि बैठ कर पीते हैं? हाँ, आबे जमजम को खड़े होकर के पीते हैं या बैठ के पीते हैं? बैठ के पिया जाता है। आबे जमजम
हाँ जमजम का पानी, हम समझ रहे हैं। जमजम का जो अरब शरीफ से लाता है ना, खड़ा होकर के पीते हैं उसको, कौन लोग? समझे। किबला के तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि पानी जो है दुनिया के जितने भी पानी है सबके फार्मूला, यानी फार्मूला जो पढ़े लिखे हुए हैं ये कॉलेज वगैरह का, तो वो लोग जानते हैं फार्मूला होता है H2O होता है। सब पानी में फार्मूला के होता है H2O। तो ये आबे जमजम में भी जो अरब शरीफ से जो पानी लाते हैं उसमें भी फार्मूला H2O है उसके, समझे। कोई पानी में फर्क नहीं आता, लेकिन मजा में फर्क डिफरेंस आ जाता है। कहीं का पानी खारा होता है, कहीं का पानी तीखा टाइप का, कहीं का पानी मटियाला टाइप का, कहीं का पानी कुछ, कहीं का पानी कुछ, समझे। लेकिन फार्मूला जो होता है सेम इक्वल होता है, बराबर ही होता है, समता होता है इसमें। तो अरब शरीफ से जो पानी आबे जमजम जो लाते हैं हाजी लोग और पीना है, तो उसको अदब के साथ खड़े होकर किबला मुंह करके पीना है, बिस्मिल्लाह करके, समझे। अच्छा। और दूसरा पानी बैठ कर पीने का हुक्म है, खड़े होकर के पी नहीं सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला उसमें शिफा रखा है वो आबे जमजम में। और आबे जमजम जो क्यों खड़े होकर पीते हैं, क्या उसमें कुछ फर्क है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो अदब सिर्फ क्यों करते हैं, और अदब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और सारे लोग अदब करते हैं उसको, वो पानी की इज्जत करते हैं। क्यों इज्जत करते हैं, तो इसलिए कि हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, अपने बेटे थे उसको बचपने के आलम में, वो रेगिस्तान की जगह जहाँ पर अभी आबे जमजम है, कुआं है, अभी कुआं के शक्ल में तो हिफाजत कर दिया हुकूमत, पहले से किया है, नजदी तो बाद में हुकूमत कायम करके उसको गासिबाना कब्जा किया है। इंशाअल्लाह उल अजीज जल्द से जल्द उसको सुन्नियों के कब्जे में जरूर आएगा, उम्मीद है। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि आबे जमजम का पानी जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपने के आलम में थे, तो हजरत हाजरा के पास पानी, उनके दूध भी खुश्क हो गई, पानी खाना पीना खत्म हो गया, तो जहाँ पर सफा मरवा है ना, पहाड़ी जो छोटे छोटे पहाड़ी थे, उसमें चढ़ करके पानी तलाश करने के लिए अपने बच्चे को लेटा दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और ऊपर कभी सफा के ऊपर चढ़ते, कभी मरवा के दौड़ लगा करके, नीचे जब गड्ढा होता तो बच्चे को देखने के लिए कैसे है, यानी एक झाड़ के नीचे लेटा दिए थे। बबूल का दरख्त तो बहुत था वहां पर और दूसरा झाड़ नहीं था। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब रो करके अपने पांव जहां रगड़ रहे थे ना, पांव जहां उनकी एड़ी रगड़ खा रही थी जमीन में, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया और वहां से पानी निकलना शुरू कर दिया, उबलना शुरू कर दिया। किसके पांव को छू करके? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव को छू करके। एक नबी के पांव को कौन छू रहा है? वो पानी जमजम निकलना शुरू हो गया। जब वो थक हार के 7 चक्कर लगा करके हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा नीचे आई, मायूसी होकर, दिल में कहीं पर पानी नहीं है, बच्चे को क्या पिलाऊंगी, मैं खुद क्या पीऊंगी, प्यासे से जान जा रही है, ये ख्याल करके दौड़ते हुए अपने बच्चे की तरफ आती हैं, तो क्या देखती हैं, जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पांव को रगड़ रहे थे ना, वहां से पानी उबल रहा है उनके पांव को छू छू करके। तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी वालिदा मोहतरमा वो बच्चे को उठा के किनारे की और चारों तरफ से वो पानी को घेरने शुरू कर दिया। लेकिन रेत बालू से पानी को रोका जा सकता है, जो उबल रहा है पानी निकल रहा है उसको, बालू से रुकता नहीं है जल्दी पानी। मिट्टी रहता है तो पानी को घेरा कर लिया जाता है, लेकिन बालू को बड़ी मुश्किल होता है पानी को रोकने में। तो रुक नहीं रहा था, पानी उबलते जा रहा है। खुद पी, बच्चे को भी पिलाई और वहां पर उबल रहा है, पानी बह रहा है। तो हजरत हाजरा कहती हैं पानी के तरफ इशारा करके, जम जम कहते हैं। वो पानी को क्या कहते हैं? जम जम। जम माने रुक, ठहर जाना,
जम तो जमजम माने रुक, ठहर ठहर। तो हजरत ठहर। हाजरा की जबान से जब ये बात निकली तो वो पानी वही घेरा में ठहर गई, समझे, वही पानी ठहर गया, रुक गया। तो वही जबान को आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि वो पानी को क्या बोलते हैं अदब से, जमजम, जमजम। माए जमजम, आबे जमजम बोलते हैं। और उसको आबे। वो पानी जब एक नबी के कदम को छू दे तो हजारों साल बल्कि कयामत तक के लिए वो पानी क्या हो गया, तबरुक बन गया। क्या बन गया? तबर्रुक। तबरुक बन गया। क्यों बना है तबरुक? एक नबी के कदम को वो छुआ है, समझे। जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम को छू दे जो पानी, वो पानी की इतनी इज्जत व अजमत है कि उसको खड़े होकर के इज्जत कर रहे हैं और पी रहे हैं उसको, समझे। पीना है, खड़े होकर पीना है। हम लोग तो पीते हैं, वो उन लोग पता पीते हैं कि नहीं। नहीं, हम लोग इज्जत करते हैं, वो लोग भी इज्जत करता है, इसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। खड़े होकर पीने का हुक्म आया तो बताइए, हमारे इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम को वो एक बार छू ले वो पानी तो कयामत तक के लिए उसकी इज्जत ये हुई कि खड़े होकर पीना है। बताइए, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन लोगों को तो मर जाना चाहिए, मर के मिट्टी में मिल जाना चाहिए। यानी इतनी गधे अक्ल है, ये खर दिमाग है कि तुम जिसका कलमा पढ़ते हो वो नबी का नाम ले रहे हो, उस पर सलाम पढ़ रहे हो, है ना। तो अदब के साथ खड़े होने में तुम्हारे पाँव में लकवा पड़ जाता है। खड़े इज्जत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, सहाबा ने सिखाया, है ना। तो इज्जत, तुम्हारी इज्जत कोई सिखाता नहीं है, ऑटोमेटिक अल्लाह तबारक व तआला डालता है, समझे। वरना नबी की इज्जत करने के लायक ही कोई भी नहीं है, बल्कि इतना फजाइल, इतना मर्तबा अल्लाह ताला ने बनाया उनको। वरफाना लका जिक्रक, उनके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद किया है। हम क्या बुलंद कर सकते हैं, हम क्या तारीफ कर सकते हैं उनकी। बहरहाल सलाम के वक्त में नबी का नाम आए तो इन बेशर्मों को खड़े होने में पाँव में लकवा मर जाता है, बैठा रहेगा जकड़ा हुआ जैसे जड़ी लग गया है। बेशरम है क्या? इतना बेशरम बेहया है, इनको अक्ल ही नहीं। बताइए, हजारों साल नबी के कदम को छू ले वो पानी की इज्जत इतनी बढ़ जाए, तुम जिसका कलमा पढ़ते हो उसको इज्जत क्यों नहीं करते? क्यों उनके नाम पर सलाम जब होता है, सलाम पढ़ोगे तो उन लोग सलाम पर भी एतराज करता है, समझे। किसी जबान में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने में कोई ममानियत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। किसी न कहें अरे नबियों ने अस्सलातु वस्सलाम पढ़े। जी जी जी, सलाम हम भी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ते भी पढ़ाते जी भी। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म भी है कुरान में कि कसरत से पढ़ो। युसल्लिमु तस्लीमा, नमाज पढ़ने के लिए युसल्लिमु, हाँ युसल्लिमु है, आयत है। युसल्लिमु इन्नल्लाह से शुरू होता है, आखिर में युसल्लिमु, सलाम पढ़ो। युसल्लिमु तस्लीमा यानी सलाम पढ़ने की तरह सलाम पढ़ो, जिस तरह हक है उस तरह सलाम पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या पहले युसल्लिमु तस्लीमा भी लाया, युसल्लिमु लाया, उसके बाद तस्लीमा पर। जिस तरह पढ़ने के हक है उस तरह पढ़ो, यानी किस तरह। आप सुन्नी लोग समझा कि हमारे लिए क्या हक है कि हम उनके हक अदा करें कि सलाम जिस तरह पढ़ना है। नमाज में तो नहीं है, नमाज में बैठते हैं तो तहियात के बाद, तहियात में जो पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, उन पर सलाम पढ़ते हैं, बड़ी अदब के साथ पढ़ते हैं, समझे, गौर व खोज उनकी याद हो। लेकिन इन लोगों नमाज में अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल आएगा तो इन लोगों की नमाज बातिल और शिर्क मुशिक बन जाएगा। ये लोग बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को आप सलाम करेंगे तो उसके ज़हन में ख्याल में नहीं आएगा आपको। जैसे आप मुझे फोन किए तो मेरे ख्याल आप ज़हन में लाएंगे कि हाँ मौलाना साहब से बात कर रहा हूँ, उनके ख्याल आपके, मेरे ख्याल आपको आएंगे, और आपका ख्याल, आपको सलाम करूंगा तो आपके ख्याल मुझे आएगा, हाँ आदिल भाई से बात कर रहा हूँ। जब नबी के ख्याल आएगा इन लोगों को नमाज में तो इन लोग मुशरिक होगा, है ना। इन लोगों का अब्बा हुजूर लिख छोड़ा है
اور نبی کے خیال کے بجائے ان لوگوں کو زنا کے خیال اور جانوروں کے خیال ان لوگوں کے لیے افضل بہتر ہے صراط مستقیم میں۔ کیسے کہتے ہیں کہ مانتے ہیں نبی کو، نبی سے محبت ہم بھی کرتے ہیں، کیسے مان لیں محبت کرتے ہیں؟ نبی کو مانتا ہے، اپنی طرح مانتا ہے، لیکن یہ بے طرح اگر شکل دیکھ لے، ان کی بیوی لوگ برداشت کر رہی ہے، ان کی صورت شکل سے تو 24 بج رہے ہیں، کیسے برداشت کر رہی ہے وہی انہی کو معلوم ہے۔ صبح میں جو دیکھ لے ان کو قسم سے شام تک چائے نصیب نہیں ہوگی، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگ منحوس شکل کے، ان کے چہرے دیکھ لیجئے 24 بجتا ہے ان لوگوں کے شکل میں۔ ان لوگوں کے مولوی کے چہرے میں رونق ہوتی ہے، دیکھیں ہیں؟ رونق نہیں دکھاتی کچھ، نہیں دکھا، اندھیرا لگے گا جسے مثل شیطان ہے کسی کونے سے نکل کے آیا ہے، اور ڈریس تو ایسا پہنے گا، ایسا جبہ لمبا اور پیجامہ اٹنگا لگتا، اور ایسے سفید رومال ڈال لے گا یا باندھ لے گا اس کو، رومال کو پگڑی کے جیسے، حالانکہ پگڑی کا حکم کیا ہے 7 ہاتھ سے کم نہ ہو، اور رومال جو ہوتا ہے 1.5 ہاتھ کا ہوتا ہے ان لوگوں کے، اور سعودی سے جو لاتا ہے 1.5 ہاتھ کا، اسی کو پگڑی بنا لیتا ہے، اور حالانکہ پگڑی کا حکم وہ نہیں ہے، ان لوگ بیوقوف لوگوں کو دکھاوے کے لیے ان لوگ پگڑی باندھ لے گا، لگتا ہے کہ 7ویں آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور تبھی نا فاروق رضوی صاحب، مولانا فاروق رضوی بولتے ہیں کہ لال رومال اوڑھ کے دلہن کی طرح آ کے بیان کرتے ہیں، جی جی جی، کہتے ہیں مرد کے بچے ہوتے ہیں سامنے آؤ بات کرو ہم سے۔ ان لوگ سامنے میں بیٹھ کر کے ان لوگ کی میت نکل جائے گی، مر کے مٹی میں مل جائیں گے، لیکن سامنے بیٹھ کر کے بات کبھی نہیں کر سکتے، صرف فون میں ادھر ادھر کی مغالطہ دینے کی کوشش، اور عوام جو سادہ لوگ مسلمان ہیں اس کو گانڈ کے طرف تسبیح کر کے پیچھے آتے جاؤ پھنستے جاؤ، ہلاتے رہے گا تسبیح، اور آئیے بھائی اللہ رسول کی بات کریں گے، اللہ رسول کی بات کرتے ہوئے وہ فضائل اعمال جانتے ہیں، فضائل اعمال کو پڑھیں گے، جو لکھا ہے ترتیب دیا ہے، کوئی حدیث اور قرآن تھوڑا پڑھے گا جی، فضائل ایمان جو بتا رہے ہیں، فضائل اعمال، ہاں فضائل اعمال ان کی کتاب ہے کیا؟ ہاں، دیوبندیوں کا تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال ہے، ان کو بہت معتبر مانتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیوبندی خود لکھا ہے، انکشاف حقیقت نام ہے کتاب کی، تو اس میں دیوبندی خود لکھتا ہے، جس کا مضمون میں بتا دیتا ہوں، مضمون کہ ایک جگہ ایک آدمی گیا مسجد میں، تبلیغی جماعت کے امیر، تبلیغی جماعت کا امیر جب مسجد میں گیا تو وہابیوں سے، دیوبندیوں سے پوچھا کہ فضائل اعمال یہاں ہے، کہیں نہیں نظر آ رہی ہے مجھے، تو کہا کہ ہاں وہ دیکھیے قرآن کے نیچے رکھی ہوئی ہے کتاب۔ یہ دوڑ کر کے گیا، وہ فوراً مسجد میں دوڑنا بھی نہیں چاہیے بیوقوف گدھے کو، لیکن دوڑ کر کے گیا وہاں جلدی سے، اور فضائل اعمال کو قرآن کے نیچے جو تھی کتاب اس کو اٹھا کے قرآن کے اوپر رکھ دیا، اور کیا کہتا ہے، قرآن اسلام کو پھیلایا نہیں جتنا یہ فضائل اعمال اسلام کو پھیلایا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بتائیے، وہ ہم لوگ نہیں لکھے ہیں اس کو، ان کے گرو گھنٹال مولویوں نے خود لکھا ہے، ایک تبلیغی جماعت کے امیر کا بیان کرتے ہوئے کہ فضائل اعمال جو ہے قرآن سے افضل بتا رہا ہے، جتنا قرآن اسلام کو پھیلایا نہیں، اتنا زیادہ فضائل اعمال اسلام کو پھیلایا ہے، ہاں نام ہے فضائل اعمال، اور اس میں اتنی غلطیاں ہیں، ان گدھوں کو بتا بتا کے تھک جاتے ہیں، ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اگر فضائل اعمال کی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، کافی وقت ہو گیا، اور سامعین کا وقت زیادہ رہے گا نہیں کروں گا، اگر کسی کو حوالہ درکار ہو تو مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ انہی کے گھر کی کہانی، انہی کی زبانی آپ کا نمبر رکھے ہیں لکھ کے، جی جی، ہم آپ کا نمبر لکھے ہیں، رکھے ہیں جیب میں، کوئی بھی بولتا ہے نام نمبر دیں گے تو بتیانے کے تیار نہیں ہوگا۔
बात कर सकते हैं शौक से, कोई उनके मौलवी हो तो बेहतर है, हम्म। या आवाम में से कोई बात समझना चाहता है तो मैं खैर मकदम करूंगा और उनको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर दूंगा। अगर समझ जाएगा तो फाबिहा, शुक्रिया। अगर नहीं समझेगा तो मैं बरियुज जिम्मा, यानी बल्लिगु अन्नी वलो आयतन की मिज़दाक, मैं बरियुज जिम्मा हो जाऊंगा उससे, यानी मैं अपना पैगाम पहुंचा दूंगा उस तक। हम्म। ठीक है। हाँ ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इन वहाबड़ा देवबंदी के खबीस अकायद से महफूज व मामून आमीन रखे और अहले सुन्नत व आमीन जमात पे कायम दायम रखे। जो इस वक्त मसलक आला हजरत हक की तर्जमानी करता है उस पर तमाम मुसलमानों को कायम रखे। आमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।